Pratik, who predicted 4-1 to England. Pratik, I want to show you something. Pratik, you were criticizing Mohammad Siraj after first test. I want to show you something. Your England could not even win a home series in last 8 years. One significant home series against India or Australia, they could not win. What is this England team? Even if Ben Stokes bowls 140 overs, then also England can't win one series. I mean, come on, man, come on. Mohammad Siraj, even without Jasprit Bumrah, has done it. And he has made sure that India win by 6 runs and level the series 2-2. And मैं तो ये बोलना चाहता हूँ as an Indian fan today, I was watching this with a security guard of my office because I was so nervous. My internet connection was gone. And what a moment it was for me, for an Indian fan, connecting with someone I don't even know, a total stranger. I was connecting with him and I was seeing the match with him. And he said, भाई हारा हुआ मैच जीत गए. मतलब यार क्या फीलिंग आया, मतलब यार इतना ट्रेजेडी हो चुका है इंडिया के साथ, बॉलिंग करते करते थक गया, इतना ट्रेजेडी से मैं यूज टू हो चुका हूँ. Finally, it all came true. Finally, India won and we are level in this series. Pratik, what do you have to say now, man? Bhai, you should correctly say hi. Bhabhi is also there. Arey, kya baat hai? Hi. Bhai, first of all, welcome Bhabhi to the channel. And first of all, both teams have won this series. It is 2-2 Shikhar, and we have to give acknowledgement of all the players who participated in this long series. 5 test match series is never easy, and we saw some dramatic scenes today. Chris Wokes coming to bat with the sides players, and Ben Stokes, before he left, he ensured that England is not going to lose this series. Don't forget that. So it is 2-2. Both teams have won. But yeah, credit to India for pulling this back. It is so satisfying. Man, we had no chance in this. There's no achievement in winning 2-2 at home. We finished this test with 37 for 6. Incredible. That, come on, man. I mean, home series में 2-2 करके कौन खुश होता है भाई? तू पहला आदमी है मैंने देखा जो, मतलब बिग 3 में कोई भी कंट्री होम पे 2-2 करके खुश नहीं होता है. नहीं बेसिकली नहीं प्रतीक अभी होम और तो भाई क्या सिंपैथी सपोर्ट करूं? नहीं शिखर, प्रतीक ऐसा क्रिकेट फैन बात कर रहा है, न्यूट्रल क्रिकेट फैन की तरह कि भाई 2-2 हुआ है, क्रिकेट जीता है, ऐसी जबरदस्त सीरीज हमने अपनी जनरेशन में पहली बार देखी है. सो प्रतीक इज बेसिकली अ न्यूट्रल क्रिकेट फैन की तरह वो बात कर रहा है, क्योंकि वो सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को, रहता है अमेरिका में. तो बेसिकली इंडिया और इंग्लैंड दोनों उसके लिए न्यूट्रल टीम्स थी. समझे बात को आप? करेक्ट. बट Good one. Let's hear from Manisha also. Manisha, you were also, I mean, I don't know you're supporting India or England, but what was your reaction to this series? Yeah, I mean, first of all, yes, test match can never be boring. That is what is everybody's accepting now, whether it is Gen Z or whether it is a millennial. Test match, like test cricket wins. And obviously हम लोग जानते हैं कि इंडिया का मतलब जीत सकता था ये सीरीज. मतलब अभी some people might laugh, but many people know that India could have win the series. But yeah, past is past. But Siraj, I mean, the way he got us this match, जैसे वो किया मतलब that man is a lion, that man has a heart of lion. इतना 5 टेस्ट खेला पूरा उसने. And yeah, I mean, initially even I used to not like his aggression, but even Root has said that is a fake aggression. Inside it is a childlike, a man who wants to win for his country. So I'm obviously disappointed that he could not win the man of the series, but then I got to know कि गौतम गंभीर ने सिलेक्ट किया है. तो वी नो गौतम गंभीर से पूछा गया होगा कि रूट या स्टोक्स, बिकॉज इंग्लैंड को एक देना है एज अ एंडरसन, तो उसने बोला होगा ब्रूक. सो वी नो जीजी. सो दैट इज हाउ जीजी इज. बट आई मीन डे 4 में 36 जब था जीतने के लिए, यस्टरडे 37 रन्स, आई विल नॉट से कि ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जीत जाएगा, बिकॉज द वे प्रसिद्ध एंड सिराज वेर बोलिंग, दे हैड क्रिएट अ फियर. सो आज जब हुआ, एंड आई क्यूडोस टू प्रसिद्ध ऑल्सो यार, मतलब हम वी नो कि हम उसको बहुत सुना रहे थे कि हे मतलब दे रहा है 1 रन 2 रन्स, बट विदाउट प्रसिद्ध देयर वुड हैव बीन नो सिराज. So yeah, too good Prasidh was. So yeah, man. तो टंग का विकेट was so important. Yeah.
या प्रसिद्ध ने MVP यॉर्कर एक चाहिए था और वहां जस्ट पे वन क्विक लाइन ऑन द 5 डे, सिर्फ 2-3 टेस्ट प्लेयर्स ही खेले पूरे 5 मैच में बॉलर्स में, एंड वोक्स वाज देयर ऑन द अदर साइड लिंपिंग, एंड सिराज इज स्टिल जंपिंग लाइक अ चाइल्ड, सो हिज फिटनेस इज नेक्स्ट लेवल. Yeah. 25 दिन का क्रिकेट के बाद फाइनली द टू टीम्स हैव बीन लॉक्ड 2-2 एंड I think India had so many chances to win this series. I think England had the chance today to win. मतलब कि बहुत क्लोज थे दोनों मैचेस. उस दिन अगर जडेजा फिनिश कर देता या आज थोड़ा एग्रेसिव खेल के फिनिश कर देता, आज गस एटकिंसन फिनिश कर सकता था. ही कुड हैव बीन अ ऑल टाइम इंग्लैंड लेजेंड. आई वाज सरप्राइज्ड कि मंडे को इतना crowd सुबह सुबह. और अगर आज गस एटकिंसन फिनिश करता, प्रतीक तू कहाँ मिलता फिर? मैं तो वो जानना चाहता हूँ, तेरा एड्रेस कहाँ होता फिर? लाइक यू सेड, मार्स पे. And मुझे तो पता था कि इंडिया जीतेगा, but that six by Atkinson was really scary. मुझे लगा कि shit, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, अब तो पक्का ये जिता देगा. But yeah man, what a किसन की आईज में बहुत डिटर्मिनेशन था यार. नॉट ओनली शील्डेड वोक्स, ही वाज आल्सो मेकिंग रन्स. मतलब बहुत सही एफर्ट था उसका. And also before you give it to Karthik and Viraj who are also here, I just want to name two people here. Obviously my favorite Jaiswal, जो परफॉर्म कर नहीं पा रहा था, एंड मैंने उस दिन डिसाइड किया कि आई माइट बी द बैड लक, तो मैंने उसको सपोर्ट करना छोड़ दिया था. बट आई एम सो हैप्पी उसने सेंचुरी बट उसने देखो सेंचुरी मार दी, सपोर्ट छोड़ते सेंचुरी मार. आई एम सो हैप्पी फॉर हिम. एंड ऑब्वियसली वाशी, ईश्वरन को ही हम बुलाने नहीं. बहुत अमेजिंग था. मतलब ये टेस्ट सीरीज में सब कुछ था. आई मीन दिस इज व्हाई टेस्ट क्रिकेट इज द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट. यू फाइट फॉर 25 days. यू आर फाइनली एंडिंग एट 2-2, बट यू आर स्टिल फीलिंग लाइक भाई क्या हमने एपिक देखा लास्ट 1-1.5 महीना में. मतलब टू टीम्स हु वांटेड टू गिव इट ऑल, fight till the last. We were privileged to watch this all tests finishing on last day. That was a privilege, and they were close and on the last day. Unbelievable. Yeah. And Washi, obviously Washington. भाई मतलब आप सोचो, जस्ट इमेजिन, हम बात करते हैं ना लोअर ऑर्डर रन्स की. एक्चुअली में वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा की 39 रन्स की पार्टनरशिप became the main point, जिसकी वजह से इंडिया 6 रन से जीत पाया. और जो हम बात करते हैं ना, जो इंटेंट उस टाइम वॉशिंगटन सुंदर ने दिखाई, मतलब इतनी पॉजिटिव इंटेंट, जो मतलब हम बार बार बोल भी रहते हैं यार वाशी इतना स्लो क्यों खेलता है, ही इज नॉट गुड विद टेल. बट जस्ट सोचो, मतलब हमने इमेजिन नहीं किया था कि वही 39 रन की वजह से इंडिया 6 रन से जीत पाएगा. और उसने जो 13 या 15 बॉलों के अंदर वो जो 36-37 रन बनाए, 6 आई थिंक 3 या 4 छक्के मारे, मतलब अनबिलीवेबल यार. मैं तो कल मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इंडिया जीतेगा. मेरे को तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कल इंडिया जीतेगा. सिर्फ क्रिश ने ही बोला था कि पापा इंडिया जीतेगा, और मैं उसको बार बार बोल रहा था हारेगा हारेगा हारेगा, और वो कह रहा था जीतेगा जीतेगा जीतेगा. और आज भी मेरे को उम्मीद नहीं थी, आज भी मुझे उम्मीद नहीं थी. विराज और हमारा सुबह से ही टिफ चल रहा था. विराज बोल रहा था 4 बॉल चाहिए अच्छी, और मैं बोल रहा था 4-5 चौके चाहिए. और शुरुआत साली वैसी ही हुई, पहली 2 बॉल पे 2 चौके. जो कल रात को हम डिस्कस कर रहे थे, याद है शिखर? मैंने कहा था यार 2 चौके पड़ते हैं इंडिया का एकदम. ऐसे ही हो गया. मतलब मैं देख रहा हूँ, मैंने तो क्रिकेट इन्फो भी ओपन नहीं किया था. मैं देख रहा हूँ हमें 25 रन चाहिए. मैं बोला ये कैसे हो गया? 10 रन एक बॉल में बन गए. अरे मैं कल रात को यही बोला था कि 2 नहीं, बट पता है सबसे बड़ी बात यही कि मैंने कल रात को ही बोला था कि यार 2 चौके पड़ते हैं ना डिफ्लेट हो जाएंगे, बट डिफ्लेट हुए ही नहीं हम लोग. मतलब जो फील्डिंग हुई, जो चौके रोके, मतलब लग रहा था यार इट वाज डेस्टिनी थी. जो कार्तिक भी बार बार बोल रहा था ना कि कभी तो लक इंडिया का साथ देगा. आज जुरेल ने भी बेहतरीन कीपिंग करी है, बेहतरीन कीपिंग. मतलब वो जो बॉल बीच में से जा रही थी पांव से, जो वो पीछे पकड़ रहा था, अंडर एज लग रहे थे, अनबिलीवेबल कीपिंग है वो. अनबिलीवेबल कीपिंग हो रही थी. मतलब आज डेस्टिन था यार. मतलब किस तरह से हम लोग रोक रहे हैं ग्राउंड पे, 2 रन 1 रन बचा रहे हैं. मतलब और जो हम और 4 रन को 2 रन कर दिया उसने. जबरदस्त जबरदस्त. और सोचो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि जैसे ही इंग्लैंड के ऊपर वो प्रेशर आया ना, जो कल हम बात कर रहे थे कि उनको डर लग गया कि हम जीतेंगे हारेंगे, वहीं उनका डाउनफॉल हो गया. डर के आगे जीत है, और वही डर इंग्लैंड को ले डूबा. नाउ विराज भाई हैं क्या? मुझे तो लग रहा था इंडियन क्रिकेट टीम में जब भी प्रेशर आता है ट्रेजेडी मूवी बना दो एक. मतलब इतना ट्रेजेडी किसके साथ हो सकता है कि यार वॉशिंगटन इतना अच्छा खेल के गया, फिर सिराज के रिफ्लेक्सेस को कल मैं गाली दे रहा था. कल मैं रेसिस्ट बन गया था. कल मैंने ये भी बोल दिया कि एशियन लोग को फील्ड स्पोर्ट में नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि यार
यार एक बार जब तुमको टांग पीछे लेके जाना था विकेट अपने बचाने के लिए, तब तुम टांग पीछे नहीं लेके गए। कल तुम अपना टांग घसीट के ले गए बाउंड्री लाइन पे। यार मैं तो सिराज का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने तो प्रतीक के अगेंस्ट बहुत बार उसको डिफेंड किया है, बट मैं कल बहुत डिसअपॉइंटेड था मैं सिराज से, जो उसने कैच छोड़ा ना, मतलब मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। बट आज उसने भाई पूरी भरपाई कर दी, मतलब उसने ये उसकी डेस्टिनी में था कि भाई ये मैच तू इंटरेस्टिंग बनाएगा लेकिन तू ही जिताएगा ये मैच, और उसने भाई करके दिखाया। मतलब ये मैच बहुत ही, और हैट्स ऑफ टू वोक्स आल्सो, मतलब टू कम एंड मतलब टू कम इन अ स्लिंग एंड play for the team. He was having that pain even if when he was running. So what a brilliant exhibition of Test cricket. या विराज बोलो। विराज भाई, यार मैं क्या बोले यार, मतलब श्रेयस भाई ने जो बोला, सुबह सुबह पहुंचते ही हम लोग हमारा बात हो गया, लेकिन चार चार अच्छे बॉल चाहिए अपने को, सिर्फ 4 अच्छे बॉल। तो आप 30 रन भी खा लो चाहिए तो, लेकिन 4 अच्छे बॉल चाहिए। और परफेक्ट अपने प्रसिद्ध और सिराज ने एग्जैक्ट 4 अच्छे बॉल डाले। मजा आ गया, मतलब इट वाज लाइक फैंटास्टिक। आई मीन क्या बोले यार, व्हाट एन एफर्ट यार, मजा आ गया। मतलब ना मैं बताता हूँ, विराज जो है ना वो अभी बहुत बिजी चल रहा है, फाइनेंस ऑडिटिंग वगैरह चल रही है, और पूरे ऑफिस में हर व्यक्ति टीवी स्क्रीन पे ग्लूड था, काम रुक गया आधे घंटे के लिए। काम रुक गया, आपने ऑडिट बंद करवा दिया आधे घंटे के लिए। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम ढूंढना चाहता हूँ भाई। मैंने उसके साथ पहला बॉल देखा और सिराज ने बोल्ड कर दिया एटकिंसन को। मतलब यार तब तक मुझे लग रहा था हार रही है, मैंने उसके साथ पहला बॉल देखा, मतलब यार मैं उसका नाम नोट करूंगा जाके। भाई वो कौन है, लकी चार्म इंडियन टीम का, मतलब यार। Anyway, Karthik has joined us, who left our group, but he's joining us as a special guest. So, Karthik bhai, before you bash us, what do you have to say about India's? Today is a celebration of Indian cricket. I know Karthik, he will not bash, he will just say good words. पहले से ही डिफेंस खेल रहा है श्रेयांश। नहीं, it is not the time for bashing. I think it's a great series. Finally, I think luck favored us. We managed to win. I think the big moments, Shreyansh, that you keep saying. I think big moment कल खत्म नहीं हुए थे। बेसबॉल का ये एक वीकनेस भी है कि यार गेम खत्म होने से पहले ही खत्म मान लेते हैं, तो वो हो गया, उल्टी पड़ गई उनके लिए। तो आई थिंक नहीं, आई थिंक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ये थोड़ा सा अगर टेक्निकल डिटेल में जाए, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस टेस्ट मैच। ऐसे टेस्ट मैच मैंने बहुत कम देखे हैं। ये पिच को क्या हो रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि देखो हेवी रोलर सुबह लग गया, कल की बात कर रहा हूँ। हेवी रोलर सुबह लग गया, ठीक है, कुछ ज्यादा स्विंग नहीं हो रहा था, बट हम लोग टाइट बॉलिंग किए विद डिफेंसिव फील्ड सेट, उनको कम स्कोरिंग कराया तो डकेट आउट हुआ, यहाँ तक मैं समझ गया। उसके बाद वो ब्रुक का कैच ड्रॉप हो गया और उसने भयानक बैटिंग की, मार दी, और दोनों ने 200 रन बना लिए, वो भी समझ गया मैं। ठीक है, पिच फ्लैट ही था, ठीक है। हेवी रोलर 1.5 डे ठीक था, 1.5 डे मतलब ऑलमोस्ट हाफ डे हेवी रोलर का इफेक्ट चल गया क्या? और उसके बाद साला ब्रुक आउट हो जाता है, एंड सडनली आई थिंक आफ्टर 2 or 3 overs आफ्टर ब्रुक गेट्स आउट, नॉट स्ट्रेट अवे, बेटल आया था तो थोड़ा फ्लैट ही था पिच। हालांकि ऐसा नहीं था कि डिफेंसिव खेले तो मूव होने लगा, ऐसा नहीं था। बेटल भी मारने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ कनेक्ट नहीं कर रहा था 20 बॉल। फिर वो जो एक शॉट मारने गया आउट हो गया। 2 बैट्समैन ने फ्लैट कंडीशंस में विकेट दे दिए बेसबॉल के चक्कर में, ठीक है। उसके बाद मुझे समझ नहीं आती कि यार ये कहाँ से इतना स्विंग सीम होने लगा कि जो रूट जैसा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन जो 120 पे खेल रहा है, आपको याद होगा जायसवाल जब आउट हुआ था वो भी 120 पे खेल रहा था, एंड पर पिच फ्लैट थी, उसने मारने के लिए गया और सीधा फील्डर के हाथ में मारा। इट वाज नॉट अ गुड बॉल, बट जो रूट की जो बॉल थी वो किक्ड फ्रॉम अ गुड लेंथ, उसको पोक कराई प्रसिद्ध कृष्णा, नॉट द मोस्ट एक्यूरेट, बॉल मूव हुआ और आउट हो गया। ये क्या मतलब, ये पहली बार देख रहा हूं मैं कि इतना मतलब लेट पिच कुछ कर लेना। एंड देन आज हेवी रोलर लग गया। अभी देखो, ठीक है पिच कर ली, ठीक है, हेवी रोलर वेयर ऑफ हो गया, मैं समझ गया। आज लीफ हुए
फिर बॉलर यूज, मतलब मुझे एक्चुअली टेक्निकली ये टेस्ट मैच समझ नहीं आया। आई थिंक कुछ तो लॉजिक कहीं तो भगवान थे, जैसे आप जो सिराज ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लॉर्ड्स टेस्ट मैच और ये कैच ड्रॉप मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है करके वो सोच रहा था, बट उसके फेवर में हो गया। तो अगर किसी के पास आंसर है तो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे अगर मैं फेजेस ऑफ प्ले थोड़ा टेक्निकली देखूं तो इट डज मेरे नॉट पास मेक है सेंस। आंसर ना। नहीं, इसको बोलते हैं कुदरत का इसको बोलते हैं कुदरत का निजाम था सिराज के साथ। नहीं, हाँ और हाँ, आई एग्री, वो एक ही आंसर है, वो एक ही आंसर है। पोएटिक मुझे लगता है पोएटिक जस्टिस था। आप कार्तिक जो बोल रहे थे ना, इंडिया का फिर से लक खराब था, क्योंकि कल जब इंग्लैंड मतलब बेन डकेट आया जब बैटिंग करने, आई थिंक इट अगेन द सन केम आउट। एंड दूसरा बात क्या हुआ कि इवनिंग में टी के बाद थोड़ा ओवरकास्ट कंडीशंस हो गया था। आई थिंक वो ओवरकास्ट कंडीशंस अफेक्टेड अ लॉट दैट स्विंग, मतलब 75 ओवर बॉल Yes. स्विंग। आई एम श्योर, मतलब इवन टंग वाज स्विंगिंग द बॉल एट 68 ओवर्स। हमने जडेजा को देखा, एक एलबीडब्ल्यू कॉल वो सर्वाइव किया था, दैट बॉल जस्ट स्वर्व्ड इन लाइक बट यार पहले भी ओवरकास्ट था ना यार, जब ब्रुक और रूट बैटिंग भी कर रहे थे तब भी थोड़ा बारिश हो रहा था और तब भी ओवरकास्ट था। ऐसा पुराने नहीं था टेस्ट कि मैच में पूरा नहीं आ ओवरकास्ट वो रहा था। था। भाई क्या नहीं उसका एक ही मेरे रीजन है यार कार्तिक, मतलब अगर आप देखोगे ना तो बेसिकली क्या हो गया ना कि हम मतलब देखो उस टाइम बैटिंग टीम हमारे ऊपर भारी थी, और जैसे ही मतलब बैथेल आया और इंडियन बॉलर्स ग्रूव में आने लगे फिर हम लोग हावी हो गए। अरे मतलब नहीं उस भाई, टाइम बेटल एक्चुअली को भी में पिच फ्लैट ही था, बेटल आउट होने तक भी पिच फ्लैट ही था। उसने एक फालतू शॉट मारा, वो तो पिच की वजह से नहीं हुई उसकी डिसमिसल। बेटल भी तो 25 बॉल खेल लिया यार 2 रन के लिए, कोई क्या उसने, और वो आगे मारने गया, बोल्ड हो गया, तब तक तो कंफर्टेबल ही था, सिर्फ मिडिल नहीं कर रहा था बॉल को। बट हाँ, Guys, one thing on that, I think we also have to give some credit to our team also. The ball was really well maintained even after 75 78 overs. The one side, दो लोग ने जो शाइन रखा था वो परफेक्ट रखा था। कंडीशंस के साथ साथ आपको बॉल मेंटेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट दैट बॉल मूविंग, फ्लैट पिच और नॉट, with the right sort of ball maintenance, ball move करेगा ही करेगा. So one good इन thing from our team guys there. even take the new इन ball माई to 20 years, मेरा लास्ट में एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, 2 पॉइंट बोलना चाहता हूँ एक्चुअली। फर्स्ट पॉइंट इज इन माई 20 years मैंने अब आप ऐसे कंफ्यूजिंग कंडीशंस नहीं देखे, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि 2 चीजें आई वांट टू हाईलाइट। स्किल ऑफ आवर बॉलर्स, मुझे हमेशा लग रहा था कि बुमराह के अलावा हमारे बॉलर्स में उतना ज्यादा स्किल नहीं है जितना जो फास्ट बॉलर दूसरे कंट्रीज का है, मतलब मूविंग द बॉल बोथ वेज, सीमिंग द बॉल, स्किल सेट थोड़ा कम है, मुझे ऐसा लग रहा था। बट इस बार मैंने 2 चीजें ऑब्जर्व की। प्रसिद्ध कृष्णा जो इसको आउट किया, जॉश टंग को आज, वो एक इन स्विंगर आफ्टर लॉट ऑफ सेटअप था, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। एंड 140, एंड उसका पेस हमेशा अप रहा है। दिस टेस्ट मैच इज बीन आउटस्टैंडिंग टू बी ऑनेस्ट। हाँ, फर्स्ट इनिंग्स की बात नहीं कर रहा मैं, सेकंड इनिंग्स की पेस बात इज कर रहा देयर, हूँ। हमेशा अप रहा है, हमेशा ही इज बीन ट्राइंग हिटिंग लेंथ। 140 प्लस। ठीक है, उसको मार लगी, बट वो बॉलिंग भी कर रहा था अच्छा खासा ऑन गुड लेंथ। डकेट का विकेट भी उसी ने लिया था फुल लेंथ बॉल से। set up very well by तो Siraj. Overton dismissal हाँ also outfielders there. हाँ, तो ओवर सिराज तो आई कैन एक्सपेक्ट क्योंकि उसके पास वो स्क्रैम्बल सीन था। बट आई विल गिव यू वन मोर नाइस स्निपेट। आप अगर श्रेयांश भाई एल्यूडेड टू दिस, ये जो जुरेल ने कीपिंग से एक ऑलमोस्ट 4 रोक दिया, ओके, जो वो सिराज का फास्टेस्ट बॉल था एट 91 माइल्स पर आवर इन दिस टेस्ट सीरीज। 146 केस पे वो यॉर्कर ट्राई किया था, इट जस्ट मिस द लेग स्टंप, राइट? अभी आप देखो, लुक एट द इंटरेस्टिंग थिंग, दैट बॉल हैड इन स्विंगर on it and it just missed the leg stump. Do you know what was the ball that was bowled to? Has anybody observed what is the ball that was bowled to Atkinson, the last one? It was a cross seam ball. उसने सीखा कि भाई अगर मैं सीम अप डाल रहा हूं तो इट इज नैरोली मिसिंग द स्टंप्स या पैड्स में जा रहा है, हो सकता है कि ये 4 रन चले जाए, हो सकता है विकेट पे ना लगे। उसने एक्चुअली क्रॉस सीम डाला था, एंड इनफैक्ट जो एटकिंसन ट्राई कर रहा था उसको लगा कि यार या तो आउट स्विंग करेगा या तो इन स्विंग करेगा, ओके, एंड ही वाज ट्राइंग टू एक्चुअली स्वाइप फ्रॉम आउटसाइड ऑफ स्टंप एंड ही प्लेड कंप्लीटली अराउंड द बॉल। तो ये मुझे 2 चीजें टेक्निकली बहुत बढ़िया लगे। प्रसिद्ध कृष्णा का जो सेटअप, आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू हैव दैट इन हिज लॉकर,
एंड जो मोहम्मद सिराज ने कॉमन सेंस दिखाया कि उसका फास्टेस्ट बॉल जब जस्ट मिस किया लेग स्टंप यॉर्कर, उसने फिर क्रॉस सीम डाला. Just go back and see the highlights. It hit the off stump. There was no swing on that Great ball. It just observation. dipped. वो एक बहुत I एंड think सिराज ने I ये भी देखा कि एटकिंसन का रेंज नहीं है. उसने देखा एटकिंसन इज ओनली ट्राइंग टू स्कोर ओवर डीप मिड विकेट, थोड़ा लो के, तो उसको ही वांटेड टू गेट अंडर हिज बैट, और वो बॉल और उसके ये जो अंडर जब बैट आया एटकिंसन ही से तो मिस्ड मैं इट. डर नहीं रहा था. I think he got very lucky because mid on was a little bit up inside. नहीं तो वो पहला स्लॉग पे कैच आउट हो जाता अगर वो डीप. मुझे समझ नहीं आया वो 3/4 अप क्यों था, क्योंकि यार वहां पे आप सिंगल तो रोक नहीं रहे थे, डबल भी रोक नहीं रहे थे, बिकॉज दैट गाय वाज नॉट इन अ मूड टू रन. ओके, तो गॉट आप वेरी अप एक्साइटेड कि एक इनसाइड विकेट लेना है, वो गलती था फील्डर का. नहीं, वो आगे क्यों, मतलब कैप्टन का गलती है, वो आगे क्यों आया 3/4 आगे. I understand when you are 3/4 up is when you are trying to cut off the two on a very large boundary. But ना ही वो लार्ज बाउंड्री था और ना ही एटकिंसन वो मूड में था कि वो टू भागे, इट वाज अनलेस जस्ट ऑफ कोर्स नर्व्स, इट वेंट जस्ट नर्व्स. एब्सोल्युटली इन द गैप. वो जैसा आगे इफ यू आगे अगर रिमेंबर वो T20 पीछे वर्ल्ड बैठ कप जाता में तो पहले स्लॉट पे आउट हो जाता. when Afghanistan was about to reach semi-finals बांग्लादेश से, they were making mistakes and mistakes, तो तब भी लक से जीत गए लास्ट में. वैसे ही तरह का मिस्टेक था आकाश हाँ. के साथ वो. और He should have एटकिंसन been का on जो the वन boundary. बाउंस 4 It था, would have been in हमने खाली regulation पीली catch. 6 करा दिया. हमने खाली पीली 6 करा दिया जो वन बाउंस 4 था. Yes. ओके, तो आई थिंक वो थोड़ा सा मुझे, आई थिंक एटकिंसन वाज नॉट ग्रेट. ऑल्सो I think final एनी जेमी स्मिथ फैंस आउट हियर, बैस बॉल जेमी स्मिथ के ऊपर बात करना चाहिए. बैस बॉल कंप्लीटली फेल्ड बेथल एंड जेमी स्मिथ in the last 2 test matches. एटकिंसन तो That's it. ठीक I'm है. done. वॉशिंगटन सुंदर ने जो मारा एटकिंसन को, क्या ट्रॉमा लगा प्रतीक? तेरा ईगो हर्ट हुआ है एटकिंसन को जो पिटाई किया वॉशिंगटन? नहीं भाई, आई मीन हैप्पी एज अ वॉशी फैन. वो तो इनक्रेडिबल इनिंग्स था. और मैं फर्स्ट सेकंड टेस्ट मैच, आई रिमेंबर गाइस, थर्ड टेस्ट मैच भी हमारा काफी हीटेड डिबेट हुआ था. मैंने कहा था कि these guys play IPL, तो तुम लोगों ने कहा था नहीं, they did the right thing today playing 75 overs and scoring 150 runs. तब भी मैंने कहा था कि these guys play IPL, why can't they play their shots, why can't they trust their attack mode. प्रतीक, तूने 4 टेस्ट बोला एटकिंसन 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 आएगा, एटकिंसन विल डू एवरीथिंग. हमारे ग्रुप में He did भाई, he did his best. It was a small game of margin in the end. ने वैसे 8 उसने विकेट लिए 8 इस मैच विकेट में. लिए एंड ही इज 8 बीइंग विकेट द लिए बेस्ट उसने. बॉलर दिस. anyone. Washington Sundar, he was not able to hit anyone. He hit what Atkinson. तो मैं क्या भाई that was Washington's brilliance ना, उसमें एटकिंसन ने खराब बॉलिंग थोड़ी ना किया. नहीं Washington का यार brilliance था वो थका हुआ था उस टाइम एटकिंसन, इतने ओवर हो गए थे, और इट वाज ऑल वॉशिंगटन सुंदर्स ब्रिलियंस एक्चुअली में. और पता है Yeah. इस सीरीज को डिफाइन कर दिया यार. ये सीरीज ऐसी रही कि अल्टीमेटली जो कर्स था ना इंडिया का पहले मैच का, कि इंडियन टेल कोलैप्स हो गया, और आई थिंक ये भी एक पोएटिक जस्टिस का ही पार्ट रहा कि वही टेल के 11वें 10वें विकेट की 40 रन की पार्टनरशिप ने इंडिया को 6 रन से जिता दिया. जो दो चीजों By हमने the way, पूरी, one more. पता है शिखर ऐसे मोमेंट्स में पिक नहीं कर सकते. ऐसे तो फिर जॉर्ज बेली ग्रेटेस्ट हो गया, उसने एंडरसन को 24 रन्स मारे थे. नहीं, ऐसा तो कंट्रोवर्सी नहीं होता. एक कॉन्ट्रा, वो तो जसप्रीत बुमराह नहीं, ग्रेटेस्ट मैं है क्या यार. बोल रहा हूँ, 35 रन मारे मैं उसने स्टुअर्ट ब्रॉड को यार. क्या बात कर रहे नहीं हो? मैं नहीं मैं 35 कुछ रन और मारे बोलना उसने चाहता हूँ स्टुअर्ट लास्ट ब्रॉड. में. लास्ट एक 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 चीज मैं बोलना चाहता हूँ बेसिकली, कि आप खुद सोचो बेसिकली कि दो चीजों की हमने पूरी सीरीज में बात करी है, जिसकी वजह से हमारे क्रिकेट कैवियर कम्युनिटी में भी काफी वाद विवाद हो गए. एक इंटेंट, एक रन रेट, एक टेल एंडर्स का कोलैप्स. ठीक है ना. आप देखो जिस वजह से इंडिया मैच जीता, उसमें तीनों चीजें हुई है. देखो, टेल एंडर की पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप के अंदर इंटेंट, जहां रन रेट, मतलब जो जुरेल ने 34 रन बनाए 46 बॉलों में, फिर वॉशी जडेजा ने भी अच्छा खेला. 46 बॉलों जडेजा में भी फास्ट 53 खेला. बनाए, जडेजा भी मतलब अल्टीमेटली जीत जो हुई ना, उसमें उसका कितना बड़ा रोल है. जो हम बात कर रहे थे वही चीज बेसिकली आंसर्ड व्हाट वी वर सेइंग इन द ग्रुप कि इम्पोर्टेंट. और इंग्लैंड प्रेशर में आती बकल डाउन कर गया भयंकर तरीके से. और सुपर बॉलिंग बाय इंडियन पेसर्स, दोनों नहीं मतलब. मेरा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ग्रुप के लिए. Ravi Shastri Virat Kohli era began in 2014 after Dhoni retired, if I'm not wrong, in Australia. I think उसके 5 साल बाद, उसके 5 नहीं 4 साल बाद उसकी पहली सेना विक्ट्री थी ऑस्ट्रेलिया में 2018 without Warner and Smith, of course, with that asterisk, right?
एंड करेक्ट। आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए, ओके, इन ओडीआई, करेक्ट। गौतम गंभीर को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हाँ उसने आज, मैंने कल की वीडियो देखी थी, आई एग्री विद यू दैट ये बॉलिंग अटैक बहुत ज्यादा थिन था ये टेस्ट मैच के लिए, बट जो भी डिसीजन उसने लिया है, दो चीजें हैं। गौतम गंभीर ने अपने दूसरा सेना टूर में बराबरी कर दी जो रवि शास्त्री एंड को ने मतलब ऑलमोस्ट 2022 में किया था, आफ्टर 6-7 years with so many pacers, बुमराह कमिंग इन, ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, इतना 5 वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स के साथ उसने एक सीरीज 4 साल बाद जीती एंड इंग्लैंड में बराबरी की, यही तो है। उसके बाद बॉर्डर गवस्कर जीता, राइट, दैट वाज 8 years लेटर। गौतम गंभीर के पास इतना बॉलिंग अटैक नहीं है, बुमराह 2 टेस्ट मैच मिस कर चुका है, शमी तो है ही नहीं, ठीक है। और सिडनी लास्ट डे, डोंट फॉरगेट, वी कुड हैव लेवल्ड द सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, बुमराह इंजरी होके पुल आउट करते हैं लास्ट डे एंड हम लोग हार जाते हैं, ओके, ऑन अ वेरी प्रोबेबल, मतलब 60-40 ऑस्ट्रेलिया का चांस था उस दिन में। तो एंड फर्स्ट आईसीसी टूर्नामेंट जीत जाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी, ओके, फर्स्ट आईसीसी टूर्नामेंट। ये लोग इतने आईसीसी टूर्नामेंट खेले, इतना क्रेडिट दिया हमने फास्ट बॉलर डेवलपमेंट। इफ यू लुक एट रिजल्ट्स बॉस, गौतम गंभीर का ठीक है, उसने हारा भी है न्यूजीलैंड के साथ 3-0, जो सब मानते हैं, एंड वो बहुत बड़ी हार थी एंड हम लोग भी मिस्ड आउट ऑन WTC वगैरह वगैरह, बट ही कुड ऑल्सो आर्ग्यू दैट यार वो ट्रांजिशन मुझे कराना ही था, आई वाज कॉट एट द रॉन्ग एंड ऑफ द ट्रांजिशन, ठीक है, जो विराट कोहली और रवि शास्त्री के पास नहीं था ये प्रॉब्लम। जब विराट कोहली रवि शास्त्री स्टार्ट किए थे, फर्स्ट टूर में धोनी रिटायर हो गए थे एंड पूरे हमारे बिग 5 तो पहले ही रिटायर हो चुके थे, तो एक नया फ्रेश ब्लडेड टीम दैट ही कुड रियली मोल्ड मिला था उसको। नाउ माय क्वेश्चन टू द ग्रुप इज, एंड एक एक का ओपिनियन लेते हैं, आई थिंक तपन इज ऑल्सो वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि यार आपका व्यू क्या है कि गौतम गंभीर, ठीक है, डिसीजन जो भी हो, आई थिंक इज टेकन सम स्ट्रॉन्ग कॉल्स एंड सम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम हैव कम ऑफ एक्चुअली, क्या लगता है? See, Karthik, I will only नहीं, repeat वो what I- अनऑर्थोडॉक्सनेस पसंद नहीं आ रही मुझे। तो जैसे आप कभी भी नीतीश राणा को खिला देते हो एंड देन प्रसिद्ध कृष्णा को आप खिला रहे हो यहाँ पे, इनिशियली जब वो फेल हुआ था फर्स्ट टेस्ट में, तो वो सब जो अनऑर्थोडॉक्स डिसीजन लेता है उस वजह से वी डोंट थिंक कि ही इज द राइट ऑप्शन क्या था? बट ऑप्शन क्या था? प्रसिद्ध कृष्णा नहीं है तो कौन है भाई? not with that. मतलब मैं Give इसको me an ना वो option, है, मैं यही जो आज कार्तिक अभी आप बोल रहे हो ना, एक्चुअली मैं आज दिन में मैंने सेम चीज सोची थी, कि एक ट्रांजिशन इंडिया का धोनी ने करवाया था, जब धोनी ने गंभीर, सहवाग बिल्कुल। और तेंदुलकर के लिए बोला था कि मुझे इनमें से 2 ही प्लेयर चाहिए। वो तो CB वनडे सीरीज में था, वनडे में, वनडे हाँ। था, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, बट एक ट्रांजिशन की शुरुआत वहां हुई थी, वनडे था, उसने कहा मुझे फिट प्लेयर्स चाहिए। इस बार गौतम गंभीर के सामने इंडियन क्रिकेट के 2 सबसे बड़े स्टॉलवर्ड्स थे जिनको हटाने की किसी की औकात ही नहीं थी, है ही नहीं, मतलब भले ही वो खराब खेल रहा था, इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरा सफर कर रहा था 2-3 साल से, बली के बकरे, भाई 5 साल तक नहीं है खेल ना, रहे थे यार, बली के विराट बकरे, कोहली तो 5 साल बली से नहीं खेल बली के बकरे बने पुजारा और आने, बट खेल कोई भी नहीं रहा था, ठीक है। तो रहा। वो मतलब इट Yes. टुक अ स्ट्रॉन्ग हेडेड कोच लाइक गौतम गंभीर, जिसने आगे की सोची कि यार मेरे को 5-6 साल बाद का सोचना है क्या होगा इंडियन क्रिकेट का, और इसीलिए सोचो अश्विन जैसा आदमी जो नहीं खेल रहा था खराब इतना, उसको भी उसने रिटायर करवा दिया किसी भी तरह से बीच सेशन में। आई डोंट नो बिल्कुल, व्हाट हैपेंड, बट बिल्कुल। समथिंग वुड हैव हैपेंड, तभी उसको मैच भी बोल हाँ, दिया, उसको बेसिकली, है ना। उसका स्टोरी आपको पता और है श्रेयंस भाई, अश्विन का? नहीं एक पता, ब्रेक अच्छा हुआ था लगेगा आज क्लिक आप, बस पे, ओके, मैं नहीं बताता पता। हूँ, आप बोल दो, आप और बोलो। रोहित शर्मा को एक्चुअली में उसने आईना दिखा दिया ऑस्ट्रेलिया में 5वां मैच ड्रॉप करवा के, वो बाद में बिल्कुल, PR बिल्कुल। स्टंट हुआ कि वो रोहित शर्मा बोला कि नहीं मैं तो खुद नहीं खेलना हाँ, वो तो चाहता, बट करना ही सोचो ना था, उसके उसका बाद वो अगला कॉन्ट्रैक्ट मैच था। खेले ही कहाँ, वही 4th टेस्ट मैच उसका लास्ट टेस्ट मैच हो गया रोहित शर्मा का। वही तो, Hmm. बिल्कुल। I'll come back to the Ashwin. नहीं, we'll take the views of everyone. I think Viraj is there, Shikhar is there, Tapan also. I think. I know, नहीं, I know आप लोग बहुत खुश हो. I don't want to be a spoil sport or anything, but do you think that we भाई तू खुश नहीं है क्या? आप लोग मतलब क्या? तू मतलब उदास है भाई? नहीं मैं ये तो तो मेरे नहीं में ये तो उदास है ना, क्योंकि ये तो 5-0 सोच रहा था, 2-2 हो गया तो ये तो बहुत ही अगर आज
मैच इंग्लैंड जीत जाती। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी घर में आके 2 मिनट नाचा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड के साथ हाई फाइव किया हूँ ऑफिस में, उसके साथ मैच देखा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, मैं आज रियली डिप्रेशन में जाने वाला था, मतलब कल ऑलमोस्ट चला ही गया था। श्रेयांश भाई सुन रहे थे मेरा पूरा बैठ के, बट ऑनेस्टली आप लोग क्या खुश हो 2-2? डू यू थिंक इंडिया शुड हैव वन दिस सीरीज? मतलब कि ऑब्वियसली वी हैड अ बिग चांस एट लॉर्ड्स, we had a big chance. Shikhar, I will give one question. I'll ask you one question. I will not answer this. No Rohit Sharma, no Virat Kohli, no Jasprit Bumrah for 2 test matches, no Mohammad Shami, no Ravichandran Ashwin, No Pant. no Rishabh Pant for 2 or 3 test matches. Actually, the way he was injured in the third one. Okay. अभी ये सब अब अगर आप लेते हो, अगर फुल स्ट्रेंथ इंडिया जाता तो यस, विद दिस बॉलिंग अटैक वी शुड हैव वन। बट आप देखो भाई, साई सुदर्शन और करुण नायर की हम लोग बुराई कर रहे थे, एंड समटाइम्स राइटली सो, बट यार एक चीज मुझे याद आ रहा है, देखो यही जुरेल, साई सुदर्शन, यही जो करुण नायर वगैरह ना, दे हैव जस्ट कम बैक यार। थोड़ा सा हम उसको ना गैप देते हैं, एक 10 टेस्ट मैच देते हैं, इतना वी शुड नॉट जंप ऑन द बैंड वैगन यार। फर्स्ट सीरीज है सबकी, पहली बार आके खेल रहे हैं। और श्रेयांश भाई, कल मैंने गिल के ऊपर आपका कमेंट देखा था यार। एक चीज है, आप अगर सारे उसके नॉक निकाल दोगे तो फिर रन कुछ नहीं है, पहली बार। ओके, वो तो किसी का भी निकाल दोगे। आपने 3 नॉक निकाल दी 300 में, 300 मेरा निकाल दिया तो मेरे रन कहाँ से आएंगे? तो क्या ही बात कर रहा है, हर चीज निकाल दे रहा है। हाँ, दूसरी बात, हाँ 5 टेस्ट मैचेस में, सॉरी बॉस, 430 रन हार निकाल दो, बट 5 टेस्ट मैचेस में, 3 टेस्ट मैचेस में 100 मारे हैं भाई साहब। एक टेस्ट मैच, हैंग ऑन, एक टेस्ट मैच हम लोग जीते थे, तो यू कुड आर्ग्यू विद हिज रन रेट, एंड वो लास्ट में स्लॉग करने से हम लोग 600 रन की टारगेट भी दी थी, एंड हम लोग जीत गए थे उसकी वजह से 430। दूसरा टेस्ट मैच हम लोग ड्रॉ करने में 4 प्लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, उसमें से एक गिल था, जो बिल्कुल हार गए थे 0 for 2 बाय द वे। नहीं, वो और तो कैच खत्म ड्रॉप मैच की था। आप बात कर रहे हो, हाँ, और जो कैच ड्रॉप की आप बात कर रहे हो उस इनिंग्स में यार, उससे तो आसान कैच ड्रॉप तो इस टेस्ट मैच में हुए, वो तो बहुत मुश्किल कैचेस थे इस टेस्ट मैच के स्टैंडर्ड में, तो वो तो अनटेकेबल कैचेस थे। ओके, तो एंड बोथ वर मिडल्ड प्रॉपरली, तो यार थोड़ा सा अनफेयर ना हो। यस, ही स्टिल हैज प्रॉब्लम विद द इनकमिंग बॉल, उसको अभी भी वर्क करना जरूरी है नहीं, मतलब बट पी पता है के मुझे आज पी बॉल, के बाद बट फर्स्ट बॉल था उसका। मेरा दिल जीता गिल ने, जब उसने मतलब प्रेजेंटेशन में बोला कि इस सीरीज से पहले मैंने ये ठान लिया था कि मुझे बेस्ट हाँ, बैट्समैन ऑफ द सीरीज बनना है। बोला था ये एंड उसने प्रूव मैनिफेस्टेशन, किया है, हाँ प्रूव किया, यस। एंड उसने प्रूव किया है। तो नो, आई एम स्टिल नॉट जंपिंग ओवर द मून विद गिल। सी, आई वाज नेवर अ वेरी बिग टेस्ट मैच बैटिंग फैन ऑफ गिल, बट व्हाट आई एम लाइकिंग इज द एफर्ट दैट ही इज पुट इनटू हिज बैटिंग। हाँ, 100% वहां पे नहीं पहुंचा है जहां हम चाहते हैं, नहीं बट कार्तिक भाई भाई, मैं वो अगर वो अश्विन वाली स्टोरी सुनना चाहता हूँ, अश्विन मतलब का गिल। कहानी बताता हूँ, अश्विन का Guys, कहानी one बताता हूँ। second. एक मिनट, Guys, विराज कुछ बोल रहे सॉरी, हैं। विराज, हाँ, 1 second on the Kohli, Shastri and Gambhir comparison. Just that yeah, 14 में I feel Kohli and Shastri inherited a bit of a broken system or a broken team, because हम लोग उसके पहले जितने भी सेना कंट्रीज में टूर किया था अंडर धोनी, we were whitewashed and we were outplayed. Okay, what thankfully, and we have to thank Shastri and Kohli for that, कि गंभीर ने जो टीम इनहेरिट किया है, इंक्लूडिंग गिल, we've got good batsmen who had 1 or 2 tours at least ऑस्ट्रेलिया के। England में maybe Jaiswal is playing for the first time. KL has played earlier. Okay, we've got a team that is playing well, that has played well, that has got Test cricket exposure. I'm not saying विराज, Rane, Pujara and Rahul didn't have it, but we विराज, did have a जस्ट broken team. Yeah, जस्ट अ फैक्ट चेक, केएल राहुल को विराट और इसने तो नहीं बनाया, उसने बिगाड़ा था, रोहित शर्मा ने absolutely not. बनाया बाद Absolutely में, not. पहली बात। दूसरा, other than Gill who toured Australia once before this, none of the current lot of the batsmen toured Australia before this. नहीं, पंत Okay. पंत पंत- का हाँ, तीसरा टूर था पंत ये। पंत को तो डेवलप किया, पंत तो मैं मान लेता हूँ, पंत इज अ विकेट, मैं बैटिंग पंत- बैट्समैन की बात कर रहा हूँ। No, हाँ, what I'm saying is कि वो और जडेजा में मान 2014 लेता हूँ, जडेजा को इन्होंने Yeah. बनाया। ये पंत कल और हमने जडेजा डिस्कस को, किया था कि जडेजा को उसी एरा ने बहुत जबरदस्त बैट्समैन के रूप में उसको कॉन्फिडेंस दिया। confidence ये हम दिया, लोगों ने कल correct, डिस्कस किया है कि जडेजा
is being a very big play part in India's victories, क्योंकि जो वो खेलने लगा है लास्ट 3-4 सालों में, is in fact the best batsman. बट ये जो टॉप 4 है ना विराज, व्हेन यू टॉक ऑफ बैटिंग यू टॉक ऑफ टॉप Yeah, ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, टॉप 4 में तो किसी ने correct. बहुत ज्यादा टूर नहीं किया है। तो आई वुड आर्ग्यू दैट बॉलिंग अटैक के हिसाब से फिर धोनी ने बहुत बड़ा बॉलिंग अटैक उनके हाथ में थमाया था, 5 बॉलर को अच्छे से बना के, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, योर मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह एंड ईशांत शर्मा, जो वर्षों से खेलते आए थे। एंड ईशांत शर्मा वाज एट हिज बेस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर। उसका अगर लास्ट 3-4 Agree. ईयर निकाल के देखोगे, वो इंडिया का बेस्ट बॉलर था। तो Agree. आई वुड Agree, से वो सेम अटैक इधर नहीं है। इधर आप देखोगे तो Agree. फेडिंग बॉलर्स हैं। तो या आई मीन दैट वाज द ओनली थिंग आई वांट टू Agree. What I was trying to say is that rebuild will take a longer time. You look at Ganguly; he also took a longer time to win lot of things because he was building things. Kohli, Shastri had to rebuild because let's face it, we were not good tours after maybe Dravid ka captaincy के बाद we were not great at touring Sena countries. Kohli and Shastri had to build that. वो जो Rebuild. 8-0 in England and Australia, yes, I Absolutely, remember. England, Australia. So exactly. So we got comprehensively whitewashed during those tours. So But Kohli, that- Shastri had to rebuild that thing. हम लोग मणिपाल में थे, शिखर श्रेयांश, watching But- that 8-0 I think. England the team, they were world's best team. England was the world's best team at that time. That England team Exactly, was very exactly. So skilled. They had everyone from Alistair Cook to Ian Bell to Devin Peterson. That kind of batting lineup you can't produce now. I'm sorry for Ollie Pope and Harry Brook and all these guys, but they are not at the caliber of that batting lineup. So ठीक है, आप लोग खुश हो, मैं भी बहुत खुश हूँ, बट आई वाज डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग कि दिस इंडियन बैटिंग, ठीक है, यंगस्टर्स हैं, करुण नायर इज नॉट अ यंगस्टर बाय द वे, करुण नायर इज बट टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है यार। हाँ, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है, बट ठीक है, ऋषभ पंत इज देयर, ही इज बीन इन करुण नायर को ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते, हनुमा विहारी के भी नंबर वैसे ही हैं जो हनुमा विहारी जब खेलता था। जडेजा, वॉशिंगटन ऑल हैव सम एक्सपीरियंस, ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि वी विल गो ऑल आउट विद अ 4 पेस बॉलिंग अटैक एंड वी विल गेट द बेस्ट बॉलर्स आउट एंड वी विल विन। मतलब कि ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 4-1 बोल रहा था 4-1 हो जाता, बट एटलीस्ट मुझे लग रहा था कि इंडिया मार्जिनली बेटर रहेगी इस सीरीज में। बट अनफॉर्चुनेटली ओवर द 25 डेज व्हाट आई हैव सीन, वी आर, जैसा कार्तिक भाई ने मुझे एक बार मैसेज भी किया था, वी आर नॉट सो मच बेटर देन देम, वी आर मे बी एट पर। हाँ, अगर कुछ प्लेयर्स आते, बट उनके भी कुछ प्लेयर्स आ सकते थे, वैसे तो उनके भी कुछ, आई मीन मार्क वुड इज नॉट प्लेइंग। Mark Wood. मैं 2022 टूर के हाइलाइट्स देख रहा था, एक इनिंग्स था, पुजारा बेचारा इतनी मुश्किल से नेगोशिएट करता है ब्रॉड एंड एंडरसन को, देन मार्क वुड आके 149 बाउंसर डालता है, वो ऐसे शोल्डर करता है, स्लिप में कैच होता है। तो वो डिफिकल्टी कितना था कि 3 ऐसे पेसर्स खेल रहे थे तब लास्ट टूर में। सो ये विन काफी अच्छा है। मुझे लगता है मार्क वुड ना टेस्ट क्रिकेट में नहीं, बट मार्क वुड ना टेस्ट क्रिकेट में काफी ओवररेटेड बॉलर है मेरे हिसाब से। यस, ही इज गॉट पेस, उसके पास है, बट उसके पास स्विंग नहीं है, उसके पास सीम नहीं है। तो ओली रॉबिन्सन, सी वेयर इंग्लैंड आई थिंक शॉट देमसेल्व्स इन द फुट, मैं बताता हूँ। एक जेनरेशनल सीमिंग पिचेस पे फास्ट बॉलर उनको मिला था और उसको बिगाड़ दिया इन्होंने, स्टोक्स और कलम ने। ओली रॉबिन्सन को फालतू फिटनेस ग्राउंड्स पे पहले इंडिया में शेम किया, बॉडी शेम किया, निकाल दिया। ओली रॉबिन्सन ये बैटिंग लाइनअप को नचाता भाई। आज इस पिच पे ना वो 12 फॉर लेता इस पिच पे, क्योंकि वो इतना वॉबल करता है ना बॉल। वर्नन और ओली रॉबिन्सन, वर्नॉन फिलेंडर जैसा बॉलर है वो, 130। वही तो बोल रहा हूँ मैं। ओली रॉबिन्सन वो तो नंबर 5 बॉलर था, वर्ल्ड का नंबर 5th रैंक बॉलर था व्हेन ही वाज टोटली shut out of the team for no reason. Thanks to baseball, India has leveled 2 series. मैं करता हूँ ये एलिटिस्ट इंग्लिश टीम को, ये एलिटिस्ट इंग्लिश टीम। आज तो मैं चाहता था सुबह हैंडशेक ऑफर करते इनको, तुम सुबह हाथ मिलाने जाते तुम। Thanks to baseball, उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग बॉलर को, एटलीस्ट इन इंग्लिश कंडीशंस फॉर श्योर, उससे बेटर बॉलर, वो तो यार फ्लैट पिच पे भी बॉल मूव कर देता है यार, अलग आइटम है वो तो। स्कॉट बोलैंड, वर्नन फिलेंडर, ओली रॉबिन्सन, मोहम्मद आसिफ, ये 4 बॉलर मुझे नाम पे आते हैं जो किसी भी पिच पे बॉल को हिला सकते। तो ऐसा एक बॉलर उनके पास
मिला जेनरेशनल टैलेंट, और उसको आज सेकंड डिवीजन काउंटी में देखते हुए मैं दुखी से बोल रहा हूँ, वो और मोटा हो चुका है। उसको बॉडी शेम करके उसको ऐसे उखाड़ दिया, हाँ मुझे समझ नहीं आता पर मुझे क्या हुआ। आया ये डॉसन साला कहाँ से आ गया बीच में? मतलब यू हैड टॉम हार्टली हु बोल्ड ब्रिलियंटली इन हैदराबाद। सॉरी फॉर शोएब बशीर को आपने इतना किया हुआ है, मतलब टॉम हार्टली का क्या इतना फॉल्ट है भाई? अभी वो 100 के लिए ऐड कर रहा है बेचारा अपना। भाई डॉसन का बॉलिंग से नहीं कैचिंग से हर्ट हुआ इंग्लैंड। नहीं नहीं वो जो भी हो, काफी भाई टॉम हार्टली गया कहाँ? मतलब एक मैच विनिंग स्पेल तुम डाल रहे हो, 7 विकेट ले रहे हो इंडिया में जाके, उसके बाद तुम पूरा गायब ही हो, मतलब कि तुम दिख ही नहीं रहे हो। मतलब वेयर डिड ही वैनिश? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। Ben Fox was such a आई good keeper. He was one of the best keepers that England produced, Ben Fox, and he was such a good player with the tail, such a good anchor. नहीं हमें जेमी स्मिथ चाहिए। हो क्या जेमी स्मिथ? क्या कर लिया जेमी स्मिथ ने? ऑल्सो हो क्या? थोड़ा फेवरेटिज्म है गाइस, एक्चुअली। स्पीकर, मैकलम एंड स्टोक्स आर कमिंग वेरी बैक मच सिमिलर टू टू, गंभीर एंड गिल। अरे भाई गंभीर एंड गिल को इतना जल्दी जज मत करो, अभी तो खेले हैं भाई एक सीरीज। मैकलम और स्टोक्स तो हैं जो फेवरेटिज्म है इन 5 लोग साल का। से खेले हो रहे हैं। ऐसा नहीं है यार, फेवरेटिज्म होता तो अरे हर्षित तुम राणा यार पहले प्लेन पे आ जाता But अभी गंभीर यार। and Gill is today after the mood of the nation today. I am sure they will continue for. नहीं, मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि टाइम दो। मैं आई एम नॉट सेइंग कोई जजमेंट पॉजिटिव नेगेटिव, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि यार 5 टेस्ट मैच में, और ठीक है वी प्लेड हाउ मेनी 11-12 टेस्ट मैचेस, आप समझो। Out to tour either Australia or England, मतलब का 2 साल का टेन्योर इतना जल्दी क्यों कट शॉर्ट किया? मुझे ये भी अरे कट शॉट नहीं, राहुल द्रविड़, नहीं कट शॉट नहीं हुआ था। नहीं मतलब राहुल द्रविड़ को फैमिली कमिटमेंट से पहले हटा के उसको इंडियन टीम कोच बनाने बहुत बड़ी चीज थी। उसको बहुत मुश्किल से एनसीए से बाहर लाया था। ओके, उसके बाद उसी को रिटायर होना था, बिकॉज 2023 वर्ल्ड कप के बाद ही रिटायर होना था उसको। तो 1 साल और करा दिया उसने 2024 के चक्कर में। he यार got extended. डोंट ब्लेम बीसीसीआई ऑन सम रूमर्स आउटसाइड। मैं बताता हूँ, क्यों नहीं हुआ? शॉट किसी ने नहीं कराया, उसको नहीं बननी भाई, उसको अपने फैमिली के साथ रहनी है, हम थोड़ी डिसाइड करते हैं यार। सेना टीम मतलब सेना टूर पे एक द्रविड़ को मिलना। अरे वो तो मेरा तुम्हारा ख्वाहिश है। आई वांट राहुल द्रविड़ टू कोच इंडियन टीम फॉर द नेक्स्ट 25 इयर्स। उससे बेटर कोच हमें कभी नहीं मिलेगा, बट उसको करना नहीं है, हम क्या करें? उसको नहीं करनी। दूसरी बात में कार्तिक भाई अश्विन का स्टोरी। अश्विन का स्टोरी यार वो बच गया। चलो अश्विन का ये एक ब्रेक हुआ था श्रेयांश भाई कि Ashwin actually was told after the New Zealand series, he felt very disappointed because he had taken an oath on himself that after India lost the India-England series, okay, this was told by Ashwin himself, after India lost the India-England series, that he न्यूजीलैंड in 2012, नहीं India-England in 2012, अच्छा ओके भाई साहब, hang on, हाँ, so after we lost that series, he decided that we should never lose a series at home and he should bowl whatever, his heart out to win. उसके बाद से हम लोग हारे नहीं, एंड जब न्यूजीलैंड के साथ 3-0 हारे तो 2 चीजें थी। एक तो ही वाज नॉट आवर बेस्ट स्पिन बॉलर, ही वाज नॉट इवन आवर सेकंड बेस्ट स्पिन बॉलर। वॉशिंगटन सुंदर वाज बाय फार बेटर देन हिम एज एन ऑफ ब्रेक बॉलर। तो उसको वो चुप गया और उसको लगा मेरा टाइम हो गया है, मैं रिटायर हो जाता हूँ। ठीक है, नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज गंभीर और रोहित शर्मा आते हैं एंड दे टेल हिम कि नहीं ऐसा नहीं है, अभी ऑस्ट्रेलिया टूर आ रहा है, तुम आ रहे हो टीम में, ओके, यू हैव टू कम, ये जरूरी टूर है, वी हैव टू विन दिस। ठीक है, और उसको लेके जाते हैं जबरदस्ती। ही वाज प्लानिंग टू रिटायर, उसको लेके जाते हैं। नाउ द इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, उसको लेके जाते हैं और उसको बेंच पे बिठा के उसके आगे वॉशिंगटन सुंदर को खिलाते हैं। वहां पे दैट ब्रोक द लास्ट स्ट्रॉ कि भाई मैं तो रिटायर होने वाला था, तुम मुझे बेइज्जती करने के लिए तुम इधर लेके आए क्या फोर्सबली? यू ब्रॉट मी हियर, आई ऑलरेडी रिजाइन दैट वॉश इज नाउ टेकिंग ओवर। आपने मुझे लाया, बोला कि तुम खेलोगे। इनफैक्ट क्या हुआ, ओके आई विल गो इनटू लिटिल मोर डिटेल। वॉशिंगटन सुंदर ऑफ कोर्स पर्थ टेस्ट में तो किसी का खेलने का चांस नहीं था, राइट, दे हैड टू प्ले 4 सीमर्स। पर्थ टेस्ट जीतने के बाद जब एडलेड स्टार्ट हुआ था, एडलेड ऑफ कोर्स इज फेवरेट ग्राउंड ऑफ अश्विन,
तो अश्विन को बोला था कि यार एक और टेस्ट रुक जा, पर्थ टेस्ट में तो मौका नहीं था तुम्हें खिलाने की, एडलेड में तो तुम्हें खिलाएंगे, एक तो पिंक बॉल है, दूसरा एडलेड तुम्हें अच्छा लगता है तो वी विल प्ले यू दैट। एंड लास्ट मॉर्निंग में ये डिसाइड होता है कि एडलेड में खेलता है कौन, वॉशिंगटन सुंदर अहेड ऑफ ये यही तो अजीब टैक्टिक्स है गंभीर एडलेड के में जो अश्विन पसंद नहीं खेला। आते हमें। Because हाँ तो हाँ अश्विन प्लेड, सॉरी मैं मेरी मुश्किल, आई मेड द रॉन्ग डिसीजन। पर वो डे नाइट था। नहीं आई मिस दिस आई थिंक डिड अश्विन प्ले दैट, आई थिंक इफ अश्विन प्लेड एडिलेड उसके बाद फिर उसको ड्रॉप करके आई थिंक दे प्लेड वॉशिंगटन सुंदर, तो उसको लगा कि यार मेरी बेइज्जती कर रहे हो तुम, ओके। एंड इनफैक्ट ही वाज सो फ्यूरियस सेइंग यार तुम्हें मेरी बेइज्जती करनी थी तो तुम पहले ही बता देते, मैं नहीं आता इतनी दूर, तो वो बीच में ही निकल गया। इनफैक्ट ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि तुम मतलब ऐसे ही निकल जाते, राइट। इनफैक्ट आई एम स्केयर्ड ऑफ वन थिंग, बुमराह का जो भी डिसीजन लिया गया आई एम श्योर इट हैज बीन टेकन इन द बेस्ट इंटरेस्ट। एक तो रूमर आ रहे हैं कि उसका कुछ एशिया कप मिस हो रहा है, अगर एशिया कप मिस हो रहा है तो ये तो इंजुरी है भाई साहब, ये तो रेस्टिंग नहीं है, ओके। सेकेंड चीज, मुझे ये डर लगा कि इमीडिएटली बुमराह डिडंट स्टे बैक फॉर द फिफ्थ टेस्ट, ही लेफ्ट, he was asked to, I mean he wanted to leave the dressing room. Now इतना मतलब बढ़िया माहौल में सीनियर बॉलर, द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, why would he not stay back? I mean स्टोक्स रुक गया था, why would he not stay back to guide the bowlers? मुझे बहुत मतलब अजीब लगा। there are talking points to come, I don't know बुमराह का फ्यूचर क्या है। फर्स्ट टेस्ट के बाद भी ये रूमर आया था कि ही इज नॉट हैप्पी विद अदर पीपल्स परफॉर्मेंस, अदर बॉलर्स के कंट्रीब्यूशन से ही इज नॉट हैप्पी, ये रूमर आया था बुमराह फर्स्ट टेस्ट के बाद। टेस्ट में तो रिफ्ट हुआ है, दैट रिफ्ट हैज हैपेंड बिटवीन गिल, गंभीर, वॉशिंगटन सुंदर के टॉपिक पे वो रिफ्ट हुआ है क्या खिलाने के लिए, बॉलिंग करवाने के लिए, वो उस पार्ट पे थोड़ा रिफ्ट हुआ है आई थिंक। वो आई डोंट नो, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज था, हर मैच फिफ्थ डे पे फिनिश हुआ। बट आई वुड And नॉट then गो बाय दोनों कैप्टन्स ने भी गलती किया, जैसा गिल का वो जो इशारे थे एंड देन स्टोक्स ने जो हैंडशेक वाला कंट्रोवर्सी किया, सो देयर वर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स इन दिस सीरीज। व्हाट इज टू वॉच आउट फॉर इज बुमराह का क्या है आगे जाके वो देखना पड़ेगा। I asked a question on the group, unfortunately Karthik bhai is not there. Karthik bhai, I want your answer. So do you rate these 23 wickets picked by Mohammad Siraj in England playing 5 tests greater than the 32 wickets picked by Bumrah in Australia in what's your take on it? No, because if you look at the average of Mohammad Siraj, I mean, let's put the emotion out of it. He was the best bowler in the series, no doubt. Okay. But if you look at the average of Mohammad Siraj, I think before today, those wickets were taken at 35 runs apiece, which is very high. The second highest wicket taker had taken his wickets at around, I mean, before today, I was saying, when the wickets were the same, right? So it was at about whatever, 25 or 27. So he's taking wickets at 35 runs apiece, whereas Bumrah took wickets at 14 runs apiece in Australia. 14 runs, which is the greatest performance of all time. Okay, so there is no comparison. Yes, Siraj is an outstanding bowler. I think answer. This series has shown us one thing. That Siraj is definitely India's second best bowler. I always thought that Siraj should be a third seamer. We should find a second bowler who is better than Siraj. Yes. But this series has convinced me that our second best bowler in the absence of Shami, which I think now probably may not play many Sena tours anyway, Shami, unless he has a miracle in his fitness. Siraj is definitely our second best bowler, but Bumrah is in the conversation of greatest of all time for a reason. I think उसका इंग्लैंड में भी 50 विकेट है, उसका ऑस्ट्रेलिया में भी 50 विकेट है, एंड उसका एवरेज भी सिराज से कम है इवन इन दिस सीरीज. सो आई वुड 19 है ओवरऑल एवरेज, 19 है. People talk a lot, but ये सीरीज में भी बुमराह का कंट्रीब्यूशन, ये सीरीज में भी if you look at बुमराह का contribution, it has not been that bad. Headingley second innings he didn't do well, but I remember he took 1 5-fer and 1 3-fer, and वो 5-fer जो I think नहीं 2 5-fer was it? He bowled well. 2 5-fer, sorry. Indian fans को कुछ मिल नहीं. शिखर एक्चुअली
शिखर, रोको डिनाइड ऑस्ट्रेलिया सीरीज विन. एक्चुअली जो बुमराह ने बॉलिंग किया था ना, वी शुड हैव वन द सीरीज देयर. वो रोको की बैटिंग की वजह से अरे हम लोग नहीं सीरीज भाई, हारे थे वहां पे. सिर्फ रोको नहीं, वो स्कॉट बोलेंड तो बुमराह का भी बाप बन गया था यार उधर. स्कॉट बोलेंड वाज अनप्लेबल यार, उसको तो कोई भी बैट्समैन नहीं खेल सकता. अगर वैसे पिच बनाते ना, मैं आपका जो रूट को एक बार देखना चाहता हूँ. ऑस्ट्रेलिया का क्लास अलग है. इंग्लैंड भाई जो रूट वो will score 100 there. Joe Root will score 100 there in Australia tour. तो अरे भाई, मैं एक और कंट्रोवर्शियल चीज बताता हूँ. 14 साल से तो बना नहीं पाया, तो अभी बना ले तो अच्छा ही है. नहीं, अनदर कंट्रोवर्शियल चीज. 14 साल तो छोड़ दो, मैं एक और भी शॉर्टर टाइमलाइन की बात बताता हूँ. सी, जो रूट इज अ ग्रेट बैट्समैन, बट he has not won a series against Australia or India in the last 8 years. Just soak that in, okay? And उसने इंडिया के खिलाफ जितने रन बनाए, आई थिंक इट्स लाइक अफरीदी इन वनडेज एंड सनत जयसूर्या इन वनडेज. मुझे बहुत डर लगता था ये दोनों बैट्समैन का. मुझे जो रूट जब भी इंडिया के सामने आता है वो पेलता है भाई, देयर इज नो डाउट. हर सीरीज में पेला इंडिया को, बट इंडिया को छोड़ के मिस्टर जो रूट has not done anything that great, albeit he is among the greatest batsmen. I think me and Shikhar had a discussion. I put something on the group also that time with statistics. He is definitely number 2 in the Fab Four for sure. And Steve Smith को कभी टच नहीं कर पाएगा. Steve Smith का लीग अलग है मेरे ख्याल. But Joe Root is definitely number 2 in that list. Kane Williamson and Virat Kohli will compete for the third spot. Because Williamson ने भी कुछ भी नहीं किया, to be very honest with you. He has not done any match winning. विराट और केन विलियमसन के absence में टीम And World Test Championship. टीम अवे ठीक है, but his contribution was not that great there. World Test Championship तो जीत गए. वैसे तो विराट कोहली 2011 वर्ल्ड कप भी जीत गया. उसका कंट्रीब्यूशन, उस मैच में अगर सिराज खेलता ना तो वो केन विलियमसन का विकेट ले लेता. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 बिगेस्ट मिस ऑफ इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री, नॉट प्लेइंग सिराज देयर. एंड उसके बाद इंग्लैंड में उसने कैसे बॉलिंग किया था जस्ट आफ्टर द WTC 2021 में जो बॉलिंग किया था सिराज ने, दैट वाज अ बिग मिस इन दैट WTC फाइनल. तो ये एक इंटरेस्टिंग. बहुत बार हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो रूट बेचारा फंस गया, इसको बेसबॉल ने गेम चेंज करवाया, बट लेट मी टेल यू, ही एक्चुअली एंजॉयज प्लेइंग विद दिस साइड अ लॉट. एंड इसके लिए मैंने प्रेडिक्ट किया कि ही विल डू इवन बेटर इन ऑस्ट्रेलिया टूर. ही लव्स बैटिंग विद हैरी ब्रूक. उनका जो इतना अच्छा है, हाउ मेनी रन्स दे हैव स्कोर्ड टुगेदर. सो एंड जो रूट विल बीट सचिन, एवरीवन नोस दैट नाउ. जो रूट के दो टेक्निकल फ्लॉ है. जब बॉल मूव होता है तो बोथ हिज एजेस आर चैलेंज्ड एंड बुमराह हैज शोन दैट. सेकंड थिंग, उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो बैकफुट पंच खेलता है with a 45 degree bat angle, which is not something you should be playing in Australia. You should have a cross batted shot. He's much better than So Gill. Joe Root, like Virat Kohli, does not. Joe Root, Gill will have a better career in Australia than Joe Root, simply because Gill's technique is not exposed as much in Australia. If the pitches are like how they normally are in Australia, अगर सिर्फ पेस एंड बाउंस है तो गिल ठोक देगा ऑस्ट्रेलिया में. इस बार पिचेस अलग थे, इस बार सीमिंग पिचेस क्रिएट किए थे. बट इफ यू गो बाय ओल्ड स्कूल ऑस्ट्रेलियन पिचेस, नो, गिल और लक्ष्मण दो जो फीट इतना मूव नहीं करते हैं ना, उनके लिए तो बहुत बढ़िया पिचेस है. बट जो रूट हैज अ प्रॉब्लम इन ऑस्ट्रेलिया. उसको कभी भी सीमिंग पिचेस भी नहीं मिले. उसको फ्लैटेस्ट ऑफ द फ्लैट डेक्स हैव बीन डिश्ड आउट टू हिम इन द लास्ट 12 years and he's not made 100. So I have, मतलब he can still go on and make 100. Just making 100, I make an announcement. Just making 100, Shikhar, just making 100 in Australia doesn't make him a great player in Australia. Yeah, obviously. Okay, हाँ, 100 से कुछ नहीं होगा. Okay, तुम इतने साल अगर हग दिए और जाके 100 मार दिया, कहाँ से तुम गोट हो जाओगे भाई? हाँ, वो होगा नहीं. इतना 8 साल का कंसिस्टेंसी भी मैटर करता है ना. The point we are trying to make, and Tapan, I'll take final comments from you and we'll close. The point I'm trying to make is English cricket needs a hard relook, which I was saying before the series started. English cricket. Oh yeah, baseball. What results has baseball given? आप होम सीरीज ही नहीं जीत पा रहे हो, आप WTC फाइनल, उसके बाद आप बोलोगे आई डोंट अंडरस्टैंड WTC. आप समझ ही नहीं पा रहे. अरे भाई, आप होम सीरीज तो जीतो, पहले आप होम सीरीज जीतो यार, उसके बाद आप समझोगे ना, आपका चांस बनेगा तभी तो आप समझोगे. अभी मैं बोलूंगा baseball era 2-2 against Australia, 4-1 against India, 2-2 against India. This is what baseball baseball has given. I'll tell you.
they श्रीलंका won the wins league against test because श्रीलंका, of their approach, Joe and Root, उसके वजह Joe से ही Root making, they are able to square the series. अरे भाई baseball has given Joe Root 200s against श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और 3-4 और टीम को जोड़ लो, पाकिस्तान भी आएगा अगली बार, फोड़ देंगे नेक्स्ट लेवल और ये लोग बहुत एंटरटेन हो जाएंगे. बट इंडिया At least इंडिया साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज नहीं जीत पाएंगे, ये मेरा क्लेम है. प्रतीक नेक्स्ट ईयर 2020 अभी ऑस्ट्रेलिया में जाके मोस्टली अगर स्ट्रगल भी करेगा ना, 20 का एवरेज भी रहेगा ना उसका, बट वो है ना विराट की तरह रहेगा. विराट कुड हैव अरे प्लेड टेस्ट स्ट्रगल क्रिकेट की फॉर क्यों अनदर 2 बात कर years, रहे हो? बट ही इज नॉट जो रूट का मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा है. आप स्ट्रगल के भाई, विराट डिड नॉट प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर 2 years, वी शुड बी थैंकफुल टू हिम. उसने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है टीम के इसके लिए, या वो तो फ्यूचर है. के लिए. आई एक्चुअली लव हिम मोर दैट ही हैज रिटायर्ड, सो आई हैव नथिंग अगेंस्ट विराट और रोहित शर्मा. Tapan, final comments from you. How are you feeling as an Indian fan today? ऑफ कोर्स एक्सटैटिक, बहुत ही अच्छा लग रहा है. मैंने तो कल बोला था 5 ओवर में खत्म हो जाएगा, आज 8 ओवर में खत्म हुआ और लाइक the result was in our favor. See, the couple of things that I wanted to share with you guys is that one of the things about baseball era and their attitude towards the way they play. So एक शायद सब लोग ने शायद वो पॉडकास्ट देखा होगा माइकल वॉन का, जिसमें आई थिंक एलिस्टर कुक वाज देयर एंड आई थिंक डेविड. Stick to cricket. Yeah. Stick So to see, cricket उसमें podcast. Ravi Shastri ने made a point that these guys asked them कि how much do these IPL players make? He said upwards of 100 crores, and these people, and like he converted that to pounds, so 10 million pounds these people earn in a year. So all of these were people were really amazed कि ये लोग इतना कमाते हैं. And in that sense, what I'm trying to say is that कि the English cricketers probably do not have that much pressure under them, and they probably that's why play so freely. They have that freedom कि अगर हाँ चलो हार भी गए तो क्या हो गया, लेकिन at least we'll go out and enjoy that. अगर आज इंडिया हारती तो probably और भी मतलब बहुत ही हम लोग critical होते हैं इस बात में. Probably we would have also made this point about Mood हम different. The tone would have हाँ. been totally right. तो Yeah. तो वो चीज था कि लाइक इंडिया कुछ ज्यादा ही प्रेशर में रहता है. और अभी फॉर द मोमेंट इंग्लिश cricketers are a little sad to lose this, but then they would not have been as sad as अगर इंडिया lose करती है. वो they're still happy, they'll still go around with their business and be okay with this. Absolutely. Did they play it as whatever it may be? हाँ, ये तो देना पड़ेगा. तो इंडिया थोड़ा ज्यादा ही प्रेशर में रहती है इन सब चीजों में, तो थोड़ा सा फ्रीली खेले. गौतम गंभीर भी बहुत प्रेशर में रहता. अभी he'll get a chance to keep his job for a while. Smile was कोई बात नहीं किया उसके बारे में. आकाशदीप का contribution भाई, उस first time I saw गंभीर smiling, मतलब that was amazing actually. So yeah man, thanks Tapan, thanks man, you added really some good points. And last में Yeah, very एक good चीज था, points happen. on a lighter note, I suppose even the umpires were under pressure today. For me, the play of the day was Kumar Sang, the Dharmasena taking his time. हाँ. भाई वो इतना गुस्सा हो गया था जब अंपायर्स कॉल, उसको पता चला अंपायर्स कॉल है, वो गुस्सा हो गया था यार कि मैंने कैसे आउट दे दिया. और क्या चेक कर रहा था वो ध्रुव जुरेल का कैच यार. मतलब इट्स अ क्लियर टेक, यू कैन सी फ्रॉम द स्टैंड्स ही हैज टेकन दैट कैच क्लियरली. उसमें वो नहीं सिराज बीच में आ गया था यार. नो सिराज था. हाँ सिराज था. सिराज ना फॉलो थ्रू में बीच में आ गया था और पहले ही भागने चला गया था और इसको दिखा नहीं बेचारा. ये बहुत बार बोलते रहता. बट आई लव एहसान रजा. रजा ने किया है. अरे वो तो जबरदस्त नॉट आउट का आउट भी दे दिया. मैं खुश था 1-2 मिनट. वो तो गजब ही डिसीजन था. अगर अंपायर्स कॉल हो जाता ना, रजा को आज एक लेटर लिखता. No, but by the way, on umpire's call, people miss it. Joe Root was on 0 when he got an umpire's call. I think people forget it. Yeah. वो same Indy पर था and Joe Root could have been out. So fine lines है. We also got Akashdeep's call ना. Yeah, मेरा एक ही I think learning है. बहुत सबसे बड़ा learning है तपन, शिखर, प्रतीक. There are such fine margins in this test series. कि यार either way this series had gone. समझ लो एटकिंसन ने छक्का मार दिया और वो लोग मतलब ये कर दिए. समझ लो 3-1 हो गया आज. तो हम लोग तो ऑबिचुअरी लिखते रहते हैं अभी इंडियन क्रिकेट.
ठीक है, और अभी हम 2-2 हैं तो हम पॉजिटिव फ्रेम से बात कर रहे हैं। लॉर्ड्स में यार 2-3 मतलब 22 हम कम दे देते तो शायद हम जीत जाते। तो आई कैन थिंक, एंड ओल्ड ट्रैफर्ड वी कुड हैव लॉस्ट फ्रॉम 0-2 एंड वी जस्ट बैटेड आउट ऑफ आवर स्किन्स। हेडिंगली में 370 का टारगेट था, वो लोग आराम से चेस कर गए। मतलब हर टेस्ट मैच हम शायद, अपार्ट फ्रॉम मैनचेस्टर, That's why 2-2 is a fair result. मतलब it's a एग्जैक्टली, एंड वन लर्निंग फॉर मी इज, ये यंग टीम को थोड़ा टाइम दो, कोचिंग या प्लेयर्स उनको इतनी जल्दी हम लोग जज ना करें। जुरेल की कीपिंग ऑलरेडी इंप्रूव हो चुकी है फ्रॉम द लास्ट 22 जो उसने लॉर्ड्स में दिया था, ऑलरेडी इंप्रूव हो गई। इज गिवन मच लेसर 22। हाँ अभी भी थोड़ा बहुत फंबल होता है बट इज वर्किंग। शुभमन गिल की गेम इंप्रूव हो रही है, और भी इंप्रूव करनी चाहिए। जायसवाल को मैं राइट ऑफ कर रहा था यार, ये क्या हो गया सडनली, बट आई डोंट केयर अबाउट द ड्रॉप कैचेस, आई डोंट केयर अबाउट द ड्रॉप कैचेस, वो तो हर जगह होते हैं। ओके, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट ड्रॉप कैचेस। ड्रॉप कैचेस के साथ तुमने किया क्या? आई एक्चुअली वांटेड 1 point to be made here. First innings, जब Ben Duckett got off to a flyer, they were 92 for no loss. Ben Duckett, I would say, threw it away when the ball was not even swinging. Indian bowlers were already lost. उनको और थकाना था, आराम से खेलना था, उसको 4-5 रन वैसे ही मिल जाते इवन विदाउट रिवर्स स्कूप। फालतू में अननेसेसरी रिस्क लेके आउट हो गया इवन आफ्टर गेटिंग सेट। नाउ यू लुक एट जायसवाल, उसने सिमिलर अप्रोच अडॉप्ट किया बेन डकेट को देख के, जो शिखर मैं तेरे को टेक्स्ट पे बता रहा था। आई होप जायसवाल प्लेज लाइक डकेट, एंड उसने खेला। वो इवनिंग उसको भी 2 ड्रॉप कैचेस मिले। नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम डाउन, ही रियलाइज्ड दैट ये जो आकाशदीप है ये मार रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है। ही जस्ट रोटेटेड स्ट्राइक, ही डिडंट डू एनीथिंग सिली एट ऑल। ओके, एंड that separates the great from the good. Jaiswal is a potential great and Duckett is a very good batsman. There is a difference between the two. When you have the game in your grasp, जो बंदा उसको मतलब निकाल के लेके जाता है, right? Like Virat Kohli, like Jaiswal now. अगर वो 100 वहां पे नहीं मारता, वो 60-70 पे खुश होके शॉट मार के आउट हो जाता, हम मैच हार जाते। बेन डकेट वो नहीं कर पाया, तो दैट इज व्हाट सेपरेट्स द गुड फ्रॉम द ग्रेट, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक जायसवाल इज destined for greatness. Bill, we have gone past an hour, Karthik. So thank you all for Yeah. your time, and thank you Viraj, Pratik, Tapan, Karthik for all joining. And it has been a momentous day for India, and we love it. And especially I have been. Let's give this team some time, guys. Let's give this team some time also. Absolutely. Time. I am hoping that this doesn't is this series, this effort is not a bad indicator, and I hope this team actually learned on this series, and I hope they make it big in the upcoming home series. They have been phenomenal. And reach the WTC after final. Manchester A4. We want India in WTC final. We want India to lift the WTC final. Thank you guys for watching this channel, and please do subscribe our channel, Cricket Caviar, and please do let us know in the comment section about your views. Thank you so much. Thank you, and take care. Good night.